ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک نام ہے جو ہر کسی زبان میں بہت طاقت رکھتا ہے، ماں، میر، مادر، مدر۔ چھوٹا سا لفظ ہے، دل کی گہرائیوں میں بہت سارے احساسات جگا دیتا ہے۔ جس نے پیار کرنے والی ماں کو کھو دیا، سمجھ لیجئے کہ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ آج کا جو قصہ ہے میں کئی دنوں سے آپ کو سنانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب بھی یہ کیس پیش کروں گی بہت اچھے سے کہانی سنانی ہوگی، کیونکہ یہ کہانی میرے دل کے قریب ہے۔ قصہ ایک جوان ماں کا ہے جسے بیچ رات میں کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ بازو والے کمرے میں اس کے 2 بیٹے سو رہے تھے۔ انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور جب صبح وہ اٹھے انہیں تباہ کن صدمہ تو ملا، لیکن ساتھ میں انہیں پولیس افسران کی شک سے بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کہانی صرف وکٹم اور قاتل کے بارے میں نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ وکٹم کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے چاہنے والوں کی بھی زندگی اجڑ جاتی ہے۔ دوستوں، یہ کیس تقریباً 40 سال تک حل نہیں ہوا تھا۔ 40 سال تک وکٹم کے 2 بیٹے انصاف کے انتظار میں اٹکے ہوئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں لنڈا سلیٹن کی کہانی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر لیک لینڈ میں سن 1981 لنڈا سلیٹن ایک سنگل مدر تھی اور وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بچوں کا باپ فرینک سلیٹن ان کی زندگی سے غائب تھا۔ لنڈا نے فرینک سے جب شادی کی تھی وہ صرف 15 سال کی تھی، فرینک 22 سال کا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ان کا بیٹا جیف پیدا ہوا۔ 3 سال بعد چھوٹا ٹم دنیا میں آیا، لیکن لنڈا اور فرینک کی شادی زیادہ عرصے تک نہیں چلی۔ فرینک شرابی تھا اور پیتے پیتے ہاتھ پاؤں چلانے کا عادی تھا۔ چھوٹی نازک لنڈا، جس کی ہائٹ بمشکل 5 فٹ 1 انچ تھی اور وزن لگ بھگ 90 پاؤنڈ تھا، اکثر شوہر کے ہاتھوں زخمی ہوتی تھی۔ شادی کے 9 سال اذیت کے گزارنے کے بعد 24 سالہ لنڈا نے ڈیورس لے لیا تھا۔ فرینک نے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، وہ ان سے ملنا تک نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 600 میل دور الاباما میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سن 1981 میں 31 سالہ لنڈا مالی مشکلات کا شکار تھی۔ فائنینشلی وہ کافی سٹرگل کر رہی تھی۔ 2 معمولی نوکریاں کر کے اپنے اور بیٹوں کے اخراجات مشکل سے پورے کرتی تھی۔ اکثر فوڈ بینکس یا خیراتی اداروں سے گھر کا راشن لینے پر مجبور ہوتی تھی، پر شکر ہے کہ لنڈا کو لیک لینڈ شہر میں ایک سستا گھر کرائے پر مل گیا تھا۔ یہ ایک گورنمنٹ سبسڈائزڈ ہاؤسنگ کمپلیکس تھا۔ لائن سے 80 چھوٹے چھوٹے 2 بیڈ روم والے گھر بنے ہوئے تھے اور ان کا کرایہ بہت کم تھا، کیونکہ یہ گھر صرف لو انکم فیملیز کو دیے جاتے تھے۔ اس اپارٹمنٹ کمپلیکس کی تعمیر، اس کی کنسٹرکشن حال میں ہوئی تھی۔ سب کچھ صاف ستھرا نیا تھا۔ صرف 3 ہفتے پہلے اپارٹمنٹ کمپلیکس کا افتتاح ہوا تھا، یعنی کہ ابھی اوپننگ ہوئی تھی، اور 10 دن پہلے ہی لنڈا اپنے بچوں کے ساتھ یونٹ 31 میں منتقل ہوئی تھی۔ لنڈا کو گھر پر فون لگانے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، لیکن بس سٹاپ قریب میں تھا اور 3 گھر چھوڑ کر اس کی بہن جوڈی بھی رہتی تھی، جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی تھی۔ اگر لنڈا غریب تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اداس رہتی تھی یا وہ منہ لٹکائے مایوس پھرتی تھی۔ لنڈا پازیٹیو سوچ کی مالک تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ آپ کے حالات آپ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ ہنسمکھ تھی، آسانی سے دوستیاں کر لیتی تھی، اپنے بیٹوں کا بے حد خیال رکھتی تھی، اپنے فارغ وقت میں بچوں کو بیچ پر پکنک کے لیے لے جاتی تھی یا پیسے اکٹھے کر مووی ٹکٹس خریدتی تھی، کانسرٹس پر لے جاتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جیف اور ٹم کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ غریب تھے یا لاچار تھے۔ لنڈا سلائی کرنا جانتی تھی، وہ اکثر اپنے اور بچوں کے کپڑے خود سیتی تھی، کھانا بھی وہ بڑھیا بنا لیتی تھی۔
लिंडा का एक बॉयफ्रेंड भी था, बॉबी डीन, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। बॉबी ने ही लिंडा को गवर्नमेंट सब्सिडाइज बिल्डिंग के बारे में बताया था। 3 सितंबर 1981 थर्सडे का दिन था। लिंडा और उसके बेटों की आम सी रूटीन थी। गर्मा की छुट्टियां 1 हफ्ते पहले खत्म हुई थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे और लिंडा अपनी नौकरियों पर। स्कूल के बाद 15 साला जेफ की स्पोर्ट्स प्रैक्टिस थी। जब वो थक हार कर घर लौटा तो वो बेहद भूखा था। फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज खाली पाया। लिंडा ने खाना तक नहीं बनाया था, लेकिन उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, हम सब साथ मिलकर डिनर करते हैं, मैं पकाने वाली हूँ। अब जेफ हुआ टिपिकल टीनेजर लड़का। उन दिनों उसकी नाक पर गुस्सा होता था। बात बात पर वो माँ से उलझता था। खाना ना मिलने पर जेफ को आया गुस्सा। माँ बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ। जेफ ने घर का दरवाजा पटका। साइकिल पर सवार होकर वो 12 मील दूर अपने नाना नानी के घर गया। अब ग्रैंड पेरेंट्स करते क्या, वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। उन्होंने जेफ को बहला फुसला कर प्यार से खाना खिलाया। जेफ उनके यहाँ थोड़ी देर टीवी देखने बैठ गया। इसी दौरान रात के 8:30 बजे 12 साला टिम को उसकी स्कूल की फुटबॉल टीम के कोच जो ने फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद घर छोड़ा। लिंडा और टिम मिलकर बाजू वाले अपार्टमेंट में दावत में शिरकत करने चले गए। 9:30 बजे के आसपास जेफ को नाना नानी ने घर छोड़ दिया। जेफ को लिंडा के हाथ लिखा पैगाम फ्रिज पर चिपका हुआ नजर आया। We're headed to a party next door. Come join us if you want. क्योंकि जेफ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था, वो पार्टी में नहीं गया और टीवी देखते हुए होमवर्क करने लगा। लिंडा और टिम यूनिट 32 की पार्टी में मोहल्ले वालों के साथ घुल मिल रहे थे। लिंडा और पड़ोसी ताश के पत्ते खेल रहे थे। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। रात के 11 बजे टिम और लिंडा घर वापस आ गए और टिम फौरन सोने चला गया। लिंडा बर्तन धोने लगी और जेफ ने उसके करीब जाकर उससे माफी मांगी। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनके बीच सुलह हो गई। अगले दिन 4 सितंबर 1981 फ्राइडे सुबह 8 बजे के करीब लिंडा की बहन जूडी ने ताज़ी नट ब्रेड ओवन से निकाली और बहन के घर का रुख किया। दोनों बहनें अक्सर एक दूसरे के यहाँ बिला झिझक आती जाती रहती थी। हफ्ते में कई दफा नाश्ता साथ करती थी। जूडी ने बहन के घर का दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, लेकिन लिंडा ने दरवाजा नहीं खोला। जूडी को इस बात से हैरत हुई क्योंकि लिंडा सूरज निकलते ही उठ जाती थी। कॉफी पीते हुए वो बैठी रहती थी। जूडी पलटकर अपने घर जाने लगी कि उसकी नजर बहन के बेडरूम की खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली हुई थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि विंडो स्क्रीन गायब थी। दोस्तों, ये किस्सा फ्लोरिडा में तय पाया था, जहां रात में मोटे बड़े तगड़े कीड़े आपको कच्चा चबा जाते हैं अगर आप उन्हें घर में दाखिल कर दें। जूडी को तशवीश हुई। वो खिड़की के करीब गई। उसने ब्लाइंड्स हटाकर कमरे में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जूडी ने जोरदार चीख मारी और वो वहां से भागते हुए मदद को पुकारने लगी। इत्तेफाक से वहां से बिल्डिंग के मेंटेनेंस वर्कर्स गुजर रहे थे। जूडी की चीखें सुनकर वो रुके और उन्होंने बिल्डिंग के ऑफिस से पुलिस को फोन किया। लेकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान 8:35 पर पहुंचे और उन्होंने बिल्डिंग के ऑफिस वालों से चाबी मांगी। घर में दाखिल हुए। लिंडा अपने कमरे में बीच बिस्तर पर मुर्दा लेटी हुई थी। वर्टिकल पोजीशन में नहीं, जैसे सर तकिए के पास होता है, वो आड़ी थी, यानी कि हॉरिजॉन्टली पड़ी थी। उसकी टांगें फैली हुई थी, बिस्तर से लटक रही थी। उसका लाल पोल्का डॉट ड्रेस उसकी कमर के गिर्द फंसा हुआ था। कंधे, सीना और टांगें नंगी रह गई थी। जमीन पर लिंडा की लाल चप्पलें और उसकी अंडरवेयर पड़ी थी। लिंडा का चेहरा जख्मी था। उसके मुंह, नाक और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। एक मेटल कोट हैंगर का तार उसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से लपटा हुआ था। लाश के नीचे चादर और बिस्तर खूना खून थे। इसके बाद पुलिस अफसरान ने घर के दूसरे कमरों का जायजा लिया। लिविंग रूम में एक बेड पड़ा था जिसमें 15 साला जेफ बेखबर अभी भी खराटे लेते हुए सो रहा था। एक पुलिस ऑफिसर की फ्लैश लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो जब जाकर उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली।
जेफ को बाहर जाने का हुक्म दिया गया। घर के सामने कई पुलिस कार्स और तमाशाई देखकर जेफ परेशान हुआ और फिर उसकी खाला जूडी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और लिंडा के कत्ल के बारे में बताया। जेफ फूट फूट कर रोने लगा। घर के अंदर दूसरे कमरे में छोटा टिम सो रहा था। अफसरान ने उसे झंझोड़ कर उठाया। अपने भाई के पास जाओ, वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। टिम ने सोचा, हम दोनों को बाहर जाने का कह रहे हैं, मेरी माँ कहाँ है? टिम अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसकी माँ का कमरा था जिसका दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही टिम वहां से गुजरा, कमरे से एक पुलिस ऑफिसर निकला और उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। टिम की नजर उसकी माँ की लाश पर पड़ी। टिम का कहना है कि 40-45 साल के बाद भी वो क्राइम सीन का भयानक मंजर अभी तक भूल नहीं सका है। लेकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट का सार्जेंट एडगार पिकेट सबसे पहले वहां पहुंचा। 53 साल सार्जेंट पिकेट फोरेंसिक यूनिट का मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट माना जाता था और वो अगले साल रिटायर होने वाला था। बेहतरीन करियर के बावजूद अफ्रीकन अमेरिकन होने पर उससे अभी भी कलीग्स के रेसिस्ट कमेंट्स सुनने पड़ते थे। जब वो लिंडा की लाश का मायना कर रहा था तो पास खड़े ऑफिसर ने उससे कहा, "अ ब्लैक मैन डोंट हैव नो बिजनेस लुकिंग एट अ नेकेड व्हाइट वुमन।" एक काले आदमी को गोरी नंगी औरत को देखने का कोई हक नहीं। अरे क्या मतलब भाई? एक प्रोफेशनल आदमी अपने काम से काम रखते हुए एविडेंस इकट्ठा करने आया है, अपनी धड़क पूरी थोड़ी कर रहा है। ये ऐसा जमाना था कि ज्यादती पर लोग आवाज उठाने के बजाय दरगुजर कर देते थे, ये सोच कर के बात बिगड़ न जाए, उल्टा सारा नजला हम पर ही गिरेगा। बहरहाल सार्जेंट पिकेट ने कार्रवाई शुरू की। लिंडा के कमरे से कुछ चोरी नहीं हुआ था। उसके ड्रेसर पर एक डब्बा था जिसमें उसकी ज्वेलरी पड़ी थी। करीब में पर्स था जिसमें पैसे थे। घर से कुछ चोरी नहीं हुआ था, ना ही कमरे में तोड़फोड़ हुई थी। लिंडा के कमरे में जो खिड़की थी उसकी जाली की स्क्रीन सिर्फ निकाली नहीं गई थी, वो स्क्रीन पूरी की पूरी गायब थी। अंदाजा लगाया गया कि कातिल स्क्रीन अपने साथ ले गया था। कमरे के खालीन पर बूट प्रिंट्स नजर आए जो खिड़की से लेकर क्लोजेट तक जा रहे थे, यानी कि कातिल खिड़की के जरिए दाखिल हुआ था और वहीं से बाहर निकला था। सार्जेंट पिकेट को खिड़की के चबूतरे पर किसी की हथेली का प्रिंट मिला। पॉम प्रिंट महफूज कर लिया गया। लिंडा की ऑटोप्सी से जाहिर हुआ कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई थी। रेप टेस्ट में स्पर्म महफूज किया गया, लेकिन 1981 में DNA टेस्टिंग इजाद नहीं हुई थी। पैथोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लिंडा की मौत 4:30 बजे के आसपास वारिद हुई थी। वायर हैंगर के जरिए उसका गला घोंटा गया था। उसकी गर्दन पर उसके नाखूनों के खरोंच थे, जो सबूत थे कि लिंडा ने हैंगर को गर्दन से हटाने की बहुत कोशिश की थी। डिटेक्टिव्स ने लिंडा के पड़ोसियों से पूछगछ की, किसी ने कुछ नहीं सुना था। यूनिट 33 में रहने वाले आइजेया नामी आदमी ने कहा, लिंडा को यहाँ रहते हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत मिलनसार थी। पार्टी में हर मोहल्लेदार से बातचीत कर रही थी। हमें तो लगता है कि कातिल लिंडा के घर में घुसकर उसका इंतजार कर रहा था। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अब तो किसी ने भी खिड़की खोलकर सोने की जुर्रत नहीं की। कईयों ने तो इलाका छोड़ने का इरादा कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने बॉबी डीन को थाने बुलाया। पता चला कि लिंडा और बॉबी का 2 दिन पहले ब्रेकअप हुआ था। डिटेक्टिव्स ने सोचा कहीं बॉबी ने लिंडा से ब्रेकअप का बदला तो नहीं ले लिया। बॉबी ने बताया कि कत्ल की रात वो अपनी माँ के घर था और रात वहीं सो गया था। उसकी माँ और उसकी बहन इस बात की गवाह थी। बॉबी को लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया गया। नतीजा कुछ खास नहीं था। डिटेक्टिव्स ने मजीद पूछगछ करनी चाहिए, पर बॉबी ने वकील बुला लिया और इसके बाद वो चुप रहा। जब अफसरान ने जूडी को इंटरोगेट किया, उसने बिला झिझक लिंडा के एक्स हस्बैंड फ्रैंक का नाम लिया और कहा, जब जेफ 7 साल का था उसने देखा कि फ्रैंक लिंडा को गले से जकड़ा हुआ था और लिंडा की कनपट्टी पर बंदूक रखी हुई थी। जेफ ने अपने बाप को खींच कर हटाया, अपनी माँ को बचाया। फ्रैंक इस किस्म का जज्बाती वहशी आदमी है। पुलिस ने फ्रैंक से बात की।
وہ ابھی بھی میلوں دور الاباما میں رہتا تھا۔ اس نے لنڈا کو سالوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس سے تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ فرینک نے اپنے ہینڈ پرنٹس ڈیٹیکٹیوز کو دے دیے۔ اس کے ہاتھ کے نشان کھڑکی پر پائے جانے والے نشان سے میچ نہیں ہوئے۔ اب تو لیکلینڈ پولیس پر پبلک کا زوردار پریشر تھا۔ لوکل کمیونٹی کے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ مجرم آزاد تھا، نہ جانے اگلا شکار کون ہوگا۔ یہی سوچ جیف اور ٹم کو ستا رہی تھی۔ جس نے بھی ان کی ماں کا قتل کیا ہوگا وہ مانسٹر ضرور انہیں ختم کرنے کے لیے لوٹے گا۔ جیف اور ٹم اپنے نانا نانی کلیرنس ہیرس اور مارگریٹ ہیرس کے ساتھ رہنے لگے۔ رات میں وہ سب ایک ہی کمرے میں سونے لگے تھے۔ اکثر کلیرنس بندوق ہاتھ میں لیے جاگتا تھا، چوکیداری کرتے ہوئے تاکہ بچے سکون کی نیند سو سکے۔ ماں کے قتل کے 2 ہفتے بعد لڑکے واپس اسکول جانے لگے، پر دونوں لڑکوں کو پبلک سے بہت مختلف ری ایکشن ملا۔ ایک طرف ٹم تھا جس نے پھر سے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے سپورٹ کیا، ٹیچروں نے بھی لحاظ کیا۔ کوچ جو اسے ابھی بھی فٹ بال پریکٹس کے بعد گھر چھوڑتا تھا اور راستے میں اس کی ہمت افزائی کرتا تھا۔ فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی بھی ٹم کا خیال رکھتے تھے۔ ٹم نے فٹ بال ٹیم کی تصویر اپنے کمرے میں ٹانگی ہوئی تھی۔ وہ اکثر لنڈا کی حوصلہ مند باتیں یاد کرتا تھا۔ لنڈا کہتی تھی، Keep moving forward, never give up. آگے بڑھتے رہو، کبھی ہمت نہ ہارو۔ دوسری طرف 15 سالہ جیف تھا جو اب ڈیٹیکٹیوز کی نظر میں سسپیکٹ بن گیا تھا۔ جاننے والوں نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا تھا کہ جیف اور لنڈا کے درمیان بہت تلخیاں تھیں۔ لنڈا نے ایک بار جیف کو باپ کے پاس بھیجنے کی دھمکی بھی دی تھی کیونکہ وہ لڑکا اس کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ جیف کو تھانے بلا کر لمبی طویل پوچھ گچھ کی گئی۔ ایک ڈیٹیکٹیو نے اس سے کہا، تم لنڈا کو زندہ دیکھنے والے آخری شخص تھے۔ سنا ہے کہ تمہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ماں بازو والے کمرے میں قتل کی گئی اور تم نے کچھ نہیں سنا، تم سوتے رہے؟ دوسرے ڈیٹیکٹیو نے کہا، You've got big arms on you. You're strong enough to put your hands around your mom's neck and kill her. جیف انہیں تعجب سے تکتا رہا۔ یہ ڈیٹیکٹیو کہہ رہا تھا کہ تمہارے بڑے تگڑے بازو ہیں، تم اتنے طاقتور لگتے ہو کہ تم اپنی ماں کا گلا دبا کر اسے مار سکتے ہو۔ ڈیٹیکٹیوز نے جیف سے طرح طرح کے عجیب و غریب سوالات کیے۔ اسے 2-3 بار لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ دیا گیا۔ ٹیسٹ جیف نے آسانی سے پاس کر لیے۔ اگلے ہفتوں میں پولیس افسران بہانے سے جیف کے اسکول آ کر اسے سب کے سامنے کلاس سے نکلواتے اور تھانے لے جاتے، جس کی وجہ سے اب تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز بھی جیف کو شکی نگاہوں سے گھورنے لگے تھے۔ اور پھر ڈیٹیکٹیوز نے جیف کو دوبارہ تھانے لے کر جانے کی کوشش کی۔ اس دفعہ انہوں نے ایک ہپنوٹسٹ بلایا ہوا تھا۔ وہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے جیف کو ہپنوٹائز کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر جیف کا نانا بھڑک پڑا۔ اس نے خوب گالیاں دی اور کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بچہ ٹرامیٹائزڈ ہوا ہے اور اسے آپ بار بار وکٹمائز کر رہے ہیں۔ اصل قاتل کو تلاش کریں۔ پولیس نے جیف کا پیچھا تو چھوڑ دیا، پر پبلک کی نظر میں وہ ابھی بھی مشکوک تھا۔ وہ اس حد تک پریشر اور انگزائٹی محسوس کر رہا تھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا۔ ساتھ میں جیف اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے لگا تھا۔ میں کیسا بیٹا ہوں؟ ماں پر جان لیوا حملہ ہو رہا تھا اور میں مست سو رہا تھا، اس کی مدد بھی نہیں کر سکا۔ جیف کو اپنے رویے پر بھی افسوس تھا۔ ماں کے ساتھ بدسلوکی، بات بات پر لڑائی کا پچھتاوا تھا۔ دوستوں، ہم ان کہانیوں میں وکٹمز کی تکلیف تو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وکٹمز کے چاہنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ ماں کے قتل کے بعد جیف اور ٹم ہائی اسکول ختم نہ کر سکے۔ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اور وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ زندگی بے مقصد، یوز لیس لگتی تھی انہیں۔ وہ دن رات نیوز چینل اور اخباروں میں لنڈا کے قتل سے متعلق خبریں تلاش کرتے تھے، اس امید میں کہ شاید قاتل کے بارے میں کچھ نئی انفارمیشن مل جائے یا وہ پکڑا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈیٹیکٹیوز نے بے شمار افراد کو انٹرویو کیا، سب کے فنگر پرنٹس اور فٹ پرنٹس لیے، لیکن کوئی میچ نہیں ملا اور یہ کیس
कोल्ड केस बन गया। तकरीबन 18 साल बाद सन 1999 के आखिर में लेकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव ब्रैडली ग्राइस को कोल्ड केस यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। उसने लिंडा स्लेटन की फाइल पढ़ते ही उसके बेटों को फोन किया। जेफ अब 33 साल का था, टिम 30 साल का। डिटेक्टिव ने दोनों को पुलिस स्टेशन आने को कहा। जैसे ही जेफ और टिम थाने पहुंचे, डिटेक्टिव ग्राइस ने जेफ को देखकर पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? डिटेक्टिव ग्राइस जेफ को पहले से जानता था। दोनों बॉलिंग के शौकीन थे और कंपटीशन के दौरान उनका आमना सामना हुआ था। डिटेक्टिव ने जेफ और टिम को बताया कि लिंडा के ऑटोप्सी के वक्त रेप टेस्ट में कातिल का स्पर्म मिला था और अब क्योंकि डीएनए टेस्टिंग इजाद हो चुकी थी, वो कुछ कर सकते थे। जेफ ने कहा, सबसे पहले मेरा और टिम का डीएनए टेस्ट कर लें ताकि हमें सस्पेक्ट की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। मैं अपने बाप से भी कहूँगा कि वो भी अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। जेफ, टिम और उनके बाप फ्रैंक का डीएनए टेस्ट हुआ। लिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड बॉबी डीन और बेशुमार अफराद ने भी अपना डीएनए सैंपल दिया। किसी का भी डीएनए कातिल के डीएनए से मैच नहीं करता था। जेफ और टिम मायूस हुए, लेकिन जेफ ने डिटेक्टिव ग्राइस से वादा करवाया कि वो लिंडा के केस को हल करने से पहले रिटायरमेंट नहीं लेगा। 2 साल बाद सितंबर 2001 में डिटेक्टिव ग्राइस को जिमी अल्मर नामी कैदी के बारे में पता चला, जिसे 10 साला बच्ची पर जिनसी तशद्दुद और हमले के जुर्म में जेल हुई थी। जिस साल लिंडा का कत्ल हुआ था, जिमी अल्मर लिंडा के घर के सामने एक दोस्त के साथ रहता था। डिटेक्टिव ने जिमी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा, लेकिन मालूम हुआ कि वो चंद साल पहले जेल में मर चुका था और उसकी लाश क्रीमेट कर दी गई थी। डिटेक्टिव्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने जिमी की मां से डीएनए सैंपल मांगा और कातिल के डीएनए से चेक किया। टेस्ट रिजल्ट वापस आया। जिमी की मां का कातिल के डीएनए से कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि जिमी अल्मर कातिल नहीं था। आखिरी कोशिश के तौर पर डिटेक्टिव ग्राइस ने कातिल का पाम प्रिंट और उसका डीएनए नेशनल डेटाबेस के मुजरिमों से मैच करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखते देखते कई साल और गुजर गए। सन 2006 में लिंडा की 25वीं बरसी थी। जेफ और टिम ने इस केस से मुतालिक इंफॉर्मेशन के बदले $10,000 का इनाम रखा था। साथ में ताश के पत्ते छपवा कर बांटे थे, जिन पर लिंडा के केस की तफसीलात लिखी थी, मगर केस में कोई तरक्की नहीं हुई। जैसे जैसे साल गुजर रहे थे, डिटेक्टिव ग्राइस को डर था कि कातिल अब तक मर चुका होगा। जेफ और टिम उसे अक्सर फोन करके खबर लेते थे। हर वक्त जवाब ये होता था कि अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कार्रवाई जारी है। 17 साल इस केस पर काम करने के बाद डिटेक्टिव ग्राइस को सन 2015 में रिटायरमेंट लेना पड़ी, क्योंकि उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। वर्दी उतारने से पहले डिटेक्टिव ग्राइस ने लिंडा के बेटों से माफी मांगी थी, पर जेफ और टिम के दिल में कोई गिला नहीं था, शिकवा नहीं था। वो जानते थे कि डिटेक्टिव ब्रैडली ग्राइस ने अपनी पूरी कोशिश की थी। जेफ ने तो डिटेक्टिव के एहतराम में अपने बेटे का नाम ब्रैडली रखा था। लिंडा स्लेटन का केस डिटेक्टिव रसल हर्ली और डिटेक्टिव टैमी हैथकॉक के हवाले कर दिया गया। 3 साल बाद दिसंबर 2019 उम्मीद की किरण फिर से जागी, क्योंकि एक मारूफ रेनाउंड साइंसदान के हाथ लिंडा स्लेटन का केस आ गया था। सीसी मोर पैराबॉन नैनोलैब्स कंपनी की चीफ जेनेरिक जीनियोलॉजिस्ट थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के जरिए हाल में एक सीरियल किलर पकड़ा गया था। सबसे पहले सीसी ने लिंडा के रेप किट से मिलने वाले डीएनए को जेड मैच नामी पब्लिक जीनियोलॉजी वेबसाइट में अपलोड किया। दोस्तों, आपने शायद इस कंपनी के एड्स कहीं देखे होंगे। कुछ साल पहले हर यूट्यूबर को अपना शिजरा नसब, अपना फैमिली ट्री जानने का शौक हुआ था। आप और मेरे जैसे आम से लोग अपना थूक टेस्टिंग ट्यूब में भेजकर जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए डीएनए रिपोर्ट देख सकते थे। आप 70% साउथ एशियन हैं, 12% बाल्टिक हैं, वगैरह वगैरह।
जब कातिल का डीएनए इस पब्लिक डेटाबेस में डाला गया, कातिल से मिलते जुलते डीएनए नजर आए। डेटाबेस में कातिल का डीएनए नहीं था, लेकिन उसके रिश्तेदार मौजूद थे। सीसी ने रिश्तेदारों का फैमिली ट्री बनाया और एक नाम वाजे हुआ क्योंकि वो अपनी फैमिली का वाहिद बेटा था। कातिल का नाम जोसेफ क्लिंटन मिल्स था। जोसेफ उर्फ जो, टिम की फुटबॉल टीम का कोच जो। वो जिंदा था, 58 साल का था, उसके बीवी बच्चे थे। वो क्राइम सीन से सिर्फ 30 मिनट के फासले पर रहता था। डिटेक्टिव टैमी हैथकॉक ने लिंडा के केस की पुरानी फाइलें निकालकर चेक की और पता चला कि लिंडा के कत्ल के दूसरे दिन ही जोसेफ से डिटेक्टिव्स ने सरसरी बहुत ही मुख्तसर पूछगछ की थी, और वो भी फोन पर। उसके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए थे। काश डिटेक्टिव्स फिंगरप्रिंट्स मांग लेते तो जोसेफ उसी हफ्ते पकड़ा जाता। बहरहाल जोसेफ मिल्स के बारे में तफ्तीश की गई। इत्तेफाक से वो सन 1984 में लिंडा के कत्ल के 3 साल बाद सिग्नेचर फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया था और उसके हैंड प्रिंट्स पुलिस के पास महफूज थे। जोसेफ के पाम प्रिंट को लिंडा की खिड़की पर पाए जाने वाले निशान से मैच किया गया। पाम प्रिंट एक जैसे थे। अफसोस की बात यह थी कि ये पाम प्रिंट क्रिमिनल डेटाबेस में अपलोड नहीं किए गए थे क्योंकि जोसेफ को जेल नहीं हुई थी, उससे बस जुर्माना अदा करना पड़ा था। इसके बाद डिटेक्टिव जोसेफ का डीएनए चेक करना चाहते थे। उन्होंने खुफिया तौर पर जोसेफ का पीछा करना शुरू किया। जब वो शॉपिंग को निकलता था या बाहर जाता था, डिटेक्टिव ताक में रहते थे कि वो कहीं नाक पोंछकर टिश्यू फेंक दे या कॉफी पीकर कप छोड़ दे, क्योंकि इन चीजों के जरिए उसका डीएनए मिल सकता था और वो रेप टेस्ट के डीएनए से मैच करके सबूत मजबूत कर सकते थे। आखिरकार पुलिस ने गार्बेज डे पर जोसेफ के घर के बाहर कचरे की थैलियां जब्त कर ली। पुलिस ने गार्बेज बैग से एक कोलोस्टमी बैग, 2 कॉटन स्वाब्स और एक प्लास्टिक का चमचा निकालकर टेस्टिंग के लिए भेजा। 11 दिन बाद नतीजा सामने आया। जोसेफ का डीएनए लिंडा के कातिल से 100% मैच करता था। पक्का सबूत हाथ में लिए डिटेक्टिव्स जेफ और टिम को कातिल के बारे में बताने गए। जाहिर सी बात है कि वो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक काबिले एतमाद जानने वाला, जिसे वो अपना मुखलिस समझते थे, उनकी माँ का कातिल था। 12 दिसंबर 2019 डिटेक्टिव्स ने जोसेफ मिल्स के घर जाकर उसे गिरफ्तार किया। उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे, वो बस चुप बैठा रहा, सकते की हालत में जैसे। थाने पहुंचकर जोसेफ को लिंडा और बच्चों की तस्वीर दिखाई गई। पहले तो जोसेफ ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे तो टिम भी याद नहीं था। वो लिंडा के घर, खास तौर पर उसके कमरे में कभी दाखिल नहीं हुआ था। लेकिन जोसेफ के सामने सबूत रखे गए तो कहानी फौरन बदल गई। जोसेफ ने कहा कि उस रात जब वो टिम को घर छोड़ने आया था, लिंडा ने बाहर आकर उसका शुक्रिया अदा किया था और दबे दबे लफ्जों में रात में मिलने का कहा था। लिंडा ने कहा था, खामोशी से आना, मैं खिड़की खुली छोड़ दूंगी। जोसेफ का कहना था कि रात 12 बजे के करीब वो खिड़की से दाखिल हुआ था तो लिंडा उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में पहले से वायर हैंगर पहना हुआ था क्योंकि लिंडा को रफ सेक्स पसंद था। जोसेफ की कहानी के मुताबिक उनके जिनसी ताल्लुकात हुए थे जिनके दौरान लिंडा ने उससे हैंगर मरोड़ने का कहा था और फिर आखिर में लिंडा बेहोश हो गई थी। जोसेफ उसे वहीं छोड़कर खिड़की से बाहर चला गया था। अगले दिन उससे बहुत हैरत हुई थी जब उससे पता चला कि लिंडा मर गई थी। डिटेक्टिव्स के लिए ये कहानी सरासर झूठ थी। उनके मुताबिक 20 साला जोसेफ को लिंडा अच्छी लगने लगी थी, लेकिन लिंडा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस रात जोसेफ 9 बजे के आसपास विंडो स्क्रीन निकालकर घर में दाखिल हुआ था। किसी ने नहीं देखा था क्योंकि उस वक्त लिंडा और टिम पड़ोसियों की पार्टी में गए हुए थे और जेफ अपने नाना नानी के घर था। जोसेफ ने लिंडा के क्लोजेट में छुपकर उसके घर आने का इंतजार किया था और फिर उसे रेप करके कत्ल कर दिया था। फरवरी 2022 61 साला जोसेफ मिल्स ने अपने वकील के मशवरे पर सजाए मौत से बचने के लिए
اقرار جرم کر لیا۔ جج نے اسے عمر قید کی سزا سنائی۔ کورٹ روم میں جیف اور ٹم کو جوزف ملز سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ I hate you. I absolutely hate you. Spent my whole life without my mama because of you. I hate you. You can't die and burn in hell fast enough for me. جیف نے روتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ ٹم نے کہا، I saw the crime scene. I saw what you did. And then you act like you're my friend. I ride in the car with you. میں نے کرائم سین دیکھا تھا، میں نے دیکھا تم نے کیا کیا تھا، اور پھر تم میرے دوست بنتے تھے، میں تمہارے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا تھا۔ جوزف کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے چند الفاظ نے سننے والوں کا خون کھولا دیا۔ جوزف نے کہا، I am a good person. I'm not that person that they're painting me out to be. میں ایک اچھا انسان ہوں، میں وہ شخص نہیں جو یہ مجھے ظاہر کر رہے ہیں۔ جیف اور ٹم کو یہ سن کر بے حد غصہ آیا۔ جیف نے کہا، میری ماں ایک اچھی انسان تھی اور اس مانسٹر نے ہم سے ہماری ماں اور ہمارا بچپن چھین لیا۔ جوزف 40 سال تک آزاد تھا، وہ اپنی زندگی جی رہا تھا۔ اس نے شادی کی، بچوں کو بڑے ہوتے دیکھا، پیسے کمائے، عیش کیا، بیٹا بیٹی کی شادیاں دیکھی، اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ کھیلا۔ He lived a good life۔ جبکہ ہماری ماں 31 سال کی عمر میں چل بسی۔ اس کے کچھ دن بعد جیف اور ٹم خاص طور سے سارجنٹ ایڈگر پھیکٹ سے ملنے گئے، جو اب 95 سال کا تھا۔ دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے فورینزک ایویڈنس، کھڑکی پر ہینڈ پرنٹ اور ریپ ٹیسٹ کا DNA اتنی اچھی طرح سے محفوظ کروایا تھا کہ 40 سال بعد بھی وہ کام آ سکے۔ سارجنٹ پکٹ نے کہا، مجھے غصہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ ڈیٹیکٹیوز نے مجھے کبھی جوزف ملز کے ہینڈ پرنٹس لے کر نہیں دیے تھے۔ میں تو کھوج جو کے بارے میں جانتا تک نہیں تھا۔ بار بار ڈیٹیکٹیوز بے قصور کالے لڑکوں کو اٹھا کر لاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ ان سب کے پام پرنٹس چیک کرو، یہ کالے مشکوک لگ رہے ہیں۔ حالانکہ کھوج جو ایک گورا آدمی اس رات لنڈا کے گھر ٹم کو چھوڑنے آیا تھا، اس گورے پر انہیں شک بالکل نہیں ہوا۔ دوستوں، جوزف ملز کے پکڑے جانے سے جیف اور ٹم کا غم تو کم نہیں ہوا ہے، لیکن کچھ حد تک انہیں سکون ملا ہے کہ ان کی ماں کا قاتل اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ جیف کا کہنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس رات میری ماں نے ہماری جان بچائی تھی۔ جوزف نے اسے دھمکایا تھا کہ اگر اس نے شور مچایا تو وہ اس کے بیٹوں کو مار دے گا۔ میری ماں چیخ سکتی تھی، چلا سکتی تھی، ہنگامہ مچا سکتی تھی، لیکن وہ ہماری خاطر خاموش رہی۔ اس نے اپنے بیٹوں کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس رات کچھ نہیں سنا تھا۔ جیف اور ٹم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں، پرانی اینٹیک گاڑیوں کی مرمت کر کے کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہر مہینے مل کر وہ اپنی ماں کی خبر کے پاس کچھ لمحے گزارتے ہیں۔ دونوں نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خاطر اپنی باقی زندگی اس کی اچھی تربیت کی مثال بن کر جئیں گے۔ دوستوں، یہ تھی لنڈا سلیٹن کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ